welcome to today's press conference. Today we are gathered together for the launch of our Maharashtra specific sports league, which is a very big and a unique one. This is called Gali Mohalla Cricket League. This Gali Mohalla Cricket League, as you rightly understood, this is for the common and unprivileged and every child who's not being taken into consideration while the bigger leagues are happening. So this is for the young and children, everyone. So this is gonna be on the Gali Mohalla level. It's gonna be the grassroots level we're gonna go have. Now I'll tell you about the structure. Now this league is not only a sports league. This is gonna be this is a movement we've started. So our children who are never being participated or not looked into the consideration for the bigger leagues, they will join us, and we will have approximately 500 teams from Maharashtra, that is Mumbai and nearby, at the first phase. So सबसे पहले हमारा जो मैच रहेगा, I'll tell you about. और सबसे जो बड़ी बात है, there are 3-4 things which we have looked after for this conference and for the league. The number one is, this is going to help the youth to drive their focus onto sports instead of any of the drugs. So this is going to be moving away from addiction. This can be alcohol, it could be drugs, it could be any kind of addiction. They're going to be focused on the sports league. Second, this is going to be a very big movement for health, for making a national health movement. So all the youth is going to be fit and fine, so that's going to be a strong point for our national health. Second, third is going to be the mental well-being for the youth. And the last is going to be a talent third. That means they can prove their mettle in the leagues and they can be the next stars of India, which can be, it can be Dhoni, it can be next Kapil Dev or Sunil Gavaskar, anything. So this is going to be a platform, a national platform for them to come and prove their mettle. Now I'll just tell you about how we've designed the league. This is a league which is called, this is turf league. So we will have 100, we've divided the 5 zones into, we will have 100 teams from every zone. So we have 4 zones in Maharashtra, which is Mumbai, Navi Mumbai, then we have Thane and Raigad. So these are the 4 zones, and we're expecting 500 total teams. Even more can happen. And every team will play around 10 matches. So we will have 5,000 matches going on for next couple of months till we go to the final stage. So this is how the thing is, and this is going to be 10 overs each match, and this is going to be a tennis ball match, and there will be no uniform. This is going to be played by the common people. So we will have the way they have been playing in Gali Mohalla. This is going to be the league which is going to cater to that. Now we come to the prize. So we also have a prize money of 11 lakh rupees for the first team, and then the second runner-up is going to be 5 lakh. Not only this prize, we will have proper training programs for the next year. So for these 2 teams, and not even these 2 teams, but we will have all the players which are going to perform during the matches. If they perform their work, we will have their training programs for next 1 year in these academy. That is Pride Academy and the academy which we have already tied up with for Maharashtra specific. So this is going to be the game plan. And now we will go ahead with, okay. Now we have Ramanjeet Singh, who is the CEO of the Gali Mohalla Cricket League. सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी आए आज, और माफी मांगना चाहूँगी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा डिले हो गई है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डिप्टी ऑफ हमारी बैच का मिस्टर बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी, स्पिरिचुअल हेड ऑफ सत कार्मिक मिशन। उन्हीं के साथ रमन सिंह जी, CEO ऑफ कैपिटल, CEO ऑफ गली मोहल्ला क्रिकेट लीग। अमन बांधी जी, डायरेक्टर ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड। हरमीत सिंह जी, डायरेक्टर प्राइड एकेडमी एंड एडवाइजर ऑफ GMCL। शशांक यादव जी,
Ram Vijay Social Foundation Director, and Rizwan Khanchi, Chairman of IFEP Indo France registered by Paris। और मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारी मुंबई कोर्ट टीम का सूरज पालकर जी, हर्षद तांबी, इम्तियाज शेख, मुनफ अमीरानी, रौफ शेख, जावेद शेख, हरीश अजराजी और मैं सभी का स्वागत करती हूँ क्रिकेट कैप्टन्स और मीडिया का। थैंक यू। अब मैं हरमीत जी को कहूँगी कि आगे का One thing, sorry, before we go ahead, we have very good news coming up. We have already tied up with Mumbai Police as a partner for the drug-free Mumbai. So we already partnered, and our inaugural match is gonna be very soon in Khar Gymkhana Club with under the police partnership. So that is a big news for us. Now I'll request 17-22 this month. Yeah. So this month it's gonna be. Now, yeah. I'll request Ramanjan. Namaskar and good afternoon. Thank you for being here today. I stand before you not just as a CEO of a league, but as a custodian of a movement. The Gali Mohalla League is India's first largest scale structured tennis ball cricket league rooted in our streets, our gullies and our mohallas. Execution with excellence. Having scaled global business, I know operational decide outcomes. The bigger picture, India's demographic dividend. India is the youngest country in the world. But where is our global medal tally? The next Kapil, Kohli or Tendulkar is not in our stadium. They are in violent, playing with broken stumps and borrowed balls. We will find them, we will back them, we will elevate them. Gratitude and commitment to my partner colleagues, Baba Inderpreet Singh, our spiritual anchor, who bring purpose to this mission, Harmeet Singh, our architect of systems and training, Aman Bandwi ji, who envision a world-class impact-driven Gali Mohalla League at scale, and to every coach, volunteer and scout on the ground. This is our league, this is India's league. It's India rising to its roots. Let's not just watch, let's invest, engage, make history together. Thank you, Jai Hind, Jai Maharashtra. लोग यहाँ कलेक्ट नहीं हुए, हम कलेक्ट हुए हैं नशा मुक्ति की, ड्रग्स को हटाने के लिए। जो न्यू जनरेशन है, जो सबसे ज़्यादा जिससे पूरा माहौल खराब हो रहा है, और हमारे बॉम्बे में बहुत सारी जगह है जो छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। अब उसने ये अभियान चालू किया है, ये कदम उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा, वो मोहल्ला क्रिकेट। जब हमारी अभी 4 दिन पहले पुलिस के आला अधिकारी से हमारी मीटिंग हुई खार में, तो जितने भी खार जिमखाना क्लब्स में जो स्टार किड्स वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पहली लॉन्चिंग जो है वो 17, 18 और 20 तारीख से, जिसकी ऑर्गेनाइज जो है वो हमारे जो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का जीआर है, 17 से लेके और 25 तक नशा मुक्ति केंद्र था। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मुंबई पुलिस इसको एग्जीक्यूट कर रही है, राइट। तो मुंबई पुलिस जो एग्जीक्यूट कर रही है वो आपके मोहल्ला क्रिकेट लीग के साथ कोलैबोरेट होकर पहली लॉन्चिंग हो रही है। पब्लिक होती तो मैं उसको ऑडियंस के लिए, क्लब के लिए बोलता, लेकिन ठीक है, तो ये पहला लॉन्चिंग। थैंक यू वेरी मच। एजेंडा जो है हमारा मुंबई पुलिस का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीआर है कि महाराष्ट्र से नशा हटाया जाए बच्चों का, तो उनकी जो पहली लॉन्चिंग है खार जिमखाना क्लब में, तो आपको डेट डिसाइड की जाएगी, उसमें सबको दोबारा आपको इन्वाइट किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब के ऑर्गेनाइजेशन में होगा ये। तो ये हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे कलेक्ट होने का, वो है नशा मुक्ति केंद्र। और मोहल्ला क्रिकेट क्लब में जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नशा अपना सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है। तो मैं इनके लिए यू देव अ बिग हैंड एवरीबॉडी प्लीज। शिवाजी नगर गौंडी है, धरावी है, बहुत सारी जगह। इसी को पर्टिकुलर नाम नहीं हो सकते, वो उसकी कंस्टिट्यूएंसी जो है खराब हो जाएगी। One more thing which I would like to share, we're looking at 8 to 9 states in India for these matches and these kinds of initiatives that we've already taken. So starting from Maharashtra, which is here, we will be taking it to Delhi. पीछे वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज साइलेंट रहें, बात ना करें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट सर, पीछे लोगों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज बात ना करें प्लीज। So we're starting with Maharashtra and then we will go to Delhi, Punjab, Himachal, Uttarakhand,
Bihar, UP, Jharkhand, we will be going there with the same structure. So imagine how many youth we're going to join in. So every state would have around 5,500 youth coming up as team members. So multiply, so it is going to be that big of a league. So it's going to be a national level league. So that's the information I want to share. So I'll request Babaji to go ahead with it. नमस्कार, मैं आपके साथ जो पूरे देश भर में हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं उसका तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप पंजाब में हो या चाहे आप शिवाजी नगर में हो, कहीं पर भी हो, मेजर प्रॉब्लम क्या है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ है तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाए तो पिंड बोलते हैं जिसको विलेज, और अगर हम यहाँ पे आए तो धारावी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर से गए। अब जो अभियान है सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज इन्वॉल्व है। तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं। दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है उसको इससे इनकम आती है। तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी। ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1000 रुपए से 5000, 10,000 रुपए की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर। अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें तो उनका सर्वाइवल भी एक रीजन है। तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, कुछ करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते तब तक इस चीज के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती। अब इनकम का जरिया बनाना प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो, तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है और साथ में करियर भी आ जाता है और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10,000 रुपए के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा, ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए क्रिकेट इतना पॉपुलर है, जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी जिंदगी दांव पे लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े, इसी तरीके से आज जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं IPL को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा IPL के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेन्स टीम है वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो रही है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, किसको समझाने की जरूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉलिंग बड़ी स्लो बढ़ रही थी और ऑफ ट्रैक जा रही थी। बट जैसे ही उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बॉलिंग करी, फर्स्ट क्लास यॉर्कर बढ़ रही थी। अब सवाल ये आया कि भाई जब तुम शूज पहन के खेल रहे हो तो तुमसे बॉल नहीं हो जा रही, और जब तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुमसे बॉलिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो बच्चे गली मोहल्ले में हर घर में क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी पहली शर्त ये रहती है कि आओगे तो किट में आओगे। पर जब वो अपने गली मोहल्ले में चप्पल में खेल रहा है और सब खेल रहा है तो कैसे किट में आएगा? तो उसकी परफॉर्मेंस तो वहीं खराब हो जाएगी। दूसरा, जब वो आएगा तो उसको किट भी लेनी पड़ेगी। अब किट लेने के लिए बड़े लोग मान के लाते हैं, तो वो जो बच्चा आज फॉर्मल ट्रेनिंग में है ही नहीं। दूसरा, कहीं वो जाएगा मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ जी गली मोहल्ले में, वही दुनिया उसको जानती नहीं। अब वो जाएगा जहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के अंदर उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो जो अपना परिवार अपना ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, वो उसको ट्रेनिंग के अंदर कैसे पैसे देगा? तो इसका हमने सिस्टम निकाला कि क्या करा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, 10 साल से जो हमारी संस्था है जमीनी तौर पे काम कर रही है और 3 साल से हम इसके ऊपर रहे थे कि कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो सबसे पहले हमने इसमें से लेदर बॉल हटा दी, क्योंकि जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा है और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है
उसके बाद वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो तो पहले ही ट्रेंड है। आज उसके सामने आप गली मोहल्ले के बच्चों को उतार दो तो कभी लेवल प्लेइंग मैच ही नहीं होगा। तो इसलिए टेनिस बॉल को हम लेके आए। टेनिस बॉल को लेने के साथ हमने उसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया था किट, वो किट हटा दी। तो अगर तुम अपने गली मोहल्ले में नंगे पैरों में खेल पाते हो तो तुम यहाँ पर भी आओ और नंगे पैरों में ही खेलो। दूसरा टेनिस बॉल का रखा है, आपको बैट और बॉल चाहिए, कुछ तुम्हारे पास ना हो, यहाँ पर आओ और खेलो। तो सारा इक्विपमेंट खेलने का भी हम दे रहे हैं। जो ग्राउंड है खेलने के लिए तो बॉक्स क्रिकेट के अंदर होगा, वो बॉक्स क्रिकेट का हमने सारा बुकिंग करके वो वेन्यू भी हम दे रहे हैं। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर और बाकी स्टेटों में भी देखा तो ऐसे होता था कि समझ लीजिए 5 लाख रुपए की प्राइज मनी है, तो जो भी टीम रजिस्ट्रेशन करती है कम से कम उसका 10% वो रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। तो अगर मैं 5 लाख का अगर प्राइज मनी चाहिए तो पहले तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, तब तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। अब मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मैंने मैच खेले, मैच खेल के मैं प्राइज मनी ले आया और अब मैं घर में बैठा हूँ, तो वो तो एक इवेंट हो गया। बट सवाल है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम अगर ताज में ना जाए, हमें वड़ा पाव मिल जाए, हमें पार्ले जी मिल जाए, ऐसी भी तो चीजें अवेलेबल है। बट जो वड़ा पाव या पार्ले जी आज क्रिकेट से बाहर था, उसका हमने इजाद किया। अब इसके अंदर प्राइस जो टीम की रजिस्ट्रेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए। तो पहले टीम आए, अपने को रजिस्टर करे और सिर्फ 1100 रुपए पे करे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 या 11 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक टीम में से हमने बच्चे को बाहर निकाल के लाना है। अगर हमने उसको दूसरे तीसरे मैच में बाहर कर दिया यानी नॉकआउट कर दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, फील्डर अच्छा है। तो इसके लिए एक टीम मिनिमम 10 मैच खेलेगी। अब जब वो 10 मैच खेलेगी तो जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा कम से कम 10 मैचों में तो नजर में आ ही जाएगा। फिर एक जैसे शशांक जी है, ऐसे हमने एक क्रिकेट एक्सपर्ट का बोर्ड बनाया। अब इनको बोला हर बंदा तो मैच पे जा नहीं सकता, तो हमने इसको बोला कि ये मैच लाइव यूट्यूब पे चलेगा और जो भी मैच खत्म हो जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो जो एक्सपर्ट की टीम है उसके सामने हर मैच अवेलेबल रहेगा, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अब अगर एक बच्चे ने सिर्फ 100 रुपए दिए और उसने सिर्फ 10 लीग मैच ही खेले, तो पर बच्चे की कॉस्ट 10 रुपए, और ना उसको 10 रुपए के अंदर 10 मैच खेलने का मौका मिल रहा है। हर बार उसको ग्राउंड का कोई खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, 10 रुपए दो और जो तुम इतने सालों से ख्वाहिश लेके बैठे हो दिल में, आके यहाँ पे क्रिकेट खेलो 10 मैच। तो इसलिए गली मोहल्ला क्रिकेट इजाद कर रहे हैं। दूसरा प्राइज मनी रखी गई इसकी 11 लाख रुपए पहली टीम के लिए जो स्टेट से आएगी, और दूसरी टीम जो आएगी उसके लिए 5 लाख। तो अगर मैं 10 रुपए दे के खेल रहा हूँ तो कम से कम मेरे सामने 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख का प्राइज अमाउंट 10 रुपए के हिसाब से भी काफी है। तो 11 लाख का प्राइज अमाउंट रखा। उसके साथ में अब आज तो हम यहाँ पर बैठ के इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 300 टीमें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। 300 टीमें आके अब 1100 रुपए देंगी और 11 लाख लेंगी और सिर्फ 10 रुपए देंगी। अब जो ये टीमें जीतेंगी इनको हम 1 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे, तो उसको फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाने के लिए वो बेड़ा हम उठाएंगे, जिसके लिए शशांक जी यहाँ पे वो आपको डिटेल देंगे बाद में। अब जब वो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है तो जो पहला सवाल था कि जो नशे की ट्रैफिकिंग में है उसको तुमने पकड़ लिया और फिर वो घर के अंदर 5 से 10 हजार रुपए ला रहा है, तो माँ बाप कहेंगे कि हमारे बेटे को तुम वहां ले गए तो हमारे घर में इनकम नहीं आ रही, तो उसको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि घर के अंदर 5,000 से 10,000 जाते रहे जब तक बच्चा वहां तैयार हो रहा है। दूसरा, ऐसे बच्चे होंगे जो पहले 10 मैचों में ही आउट हो जाए उनकी टीम, तो इसके अंदर जो ये एक्सपर्ट्स की टीम हमारी है वो बैठेगी और वो ये देखेगी कि चाहे वो बच्चा 10 मैच में टूर्नामेंट से बाहर हो गया बट उसमें प्रतिभा थी, उसको भी हम स्काउट करके अपने ट्रेनिंग सिस्टम में लाएंगे। तो ऐसा होगा जब तक लीग खत्म होगी तब तक पहुंचते 100-150 बच्चे तो ऐसे ही आ जाएंगे, चाहे वो टीम जीते या ना जीते। और सबके लिए हर महीने का स्टाइपेंड, रहने का बंदोबस्त और ट्रेन का बंदोबस्त वो भी सारे हम करेंगे। तो एक मुहिम की तरह जो भी बच्चे हैं चाहे वो नशे के रुपए में खेलेंगे और लेवल पे ही फील्ड हो जाएगा और सबको एक मौका मिल जाएगा। तो इस मुहिम के साथ हम लोग यहाँ पर आके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ
इन टीमों में कोई भी टीम ओनर नहीं हो रहा, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं होगी। जिसकी टीम है, जो कैप्टन है, वही उसका मालिक है। और जब ये सारा चल रहा होगा तो हर घर परिवार का हर मैच लाइव यूट्यूब पे आ रहा होगा। तो वो जब बच्चा उस यूट्यूब पे दिखेगा और सारा दिखेगा, तो जितने भी लोग सिलेक्टर्स बैठे हैं, चाहे वो स्टेट के हो या वो नेशनल टीम के हो या वो आईपीएल के ही हो, तो हर बच्चे वो निकल के आ जाएंगे गली मोहल्ले चौल से, जो आज तक कभी उनके सामने आ ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे हमने शशांक जी से भी डिस्कस करा और बाकी भी देखा, बेहतरीन खेलने वाले बच्चे हैं आज एकेडमीज के अंदर, बट उनको कभी चांस नहीं मिलता। अब वो बच्चा अच्छा खेलता है, ये किसको पता है? उस बच्चे को जहां पर वो खेल रहा है बस यहाँ, बट उसके पड़ोसी को नहीं पता, उसके मोहल्ले को नहीं पता, जनरल पब्लिक को नहीं पता। पर जब वो यूट्यूब पे देखेगा कि ये हमारे घर का बेटा इतना बढ़िया खेल रहा है, तो पब्लिक सपोर्ट आएगा। और पब्लिक सपोर्ट आने से ऑटो मोड के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी लोग स्टेट की, आईपीएल की या इंडिया की लीग के लिए प्लेयर्स ढूंढते हैं, उनको ये बच्चे उभर के निकले। तो इस तरीके से जैसे आज इंडिया आइडल का टैलेंट हंट है, इसी तरीके से हर एक घर के अंदर का टैलेंट हंट क्रिकेट का एक गली मोहल्ला क्रिकेट लीग बन के आया है और पूरे देश में एक मूवमेंट की तरह इनको आगे बढ़ाएगा और इनको सबको साथ लेके देगा। जब महाराष्ट्र पुलिस से भी बात हुई तो अवेयरनेस एक पार्ट है, बट आज आपने अवेयरनेस भी कर दी, उसके बाद धर्मेंद्र इनकम नहीं दी और बच्चे को आगे नहीं बढ़ाया और एक टूर्नामेंट खेल के वहीं छोड़ दिया, तो वो चीज वहीं की वहीं घरों अंदर पड़ी रहेगी परिवारों की। तो इसके साथ मैं बस कंक्लूड करना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोगों की जैसे ये कोर टीम है, साथ में फिर महाराष्ट्र की पूरी टीम आई है, जो पूरे महाराष्ट्र में ये देखेंगे कौन से जोन है, कैसे कहाँ पे टर्फ है, कहाँ पे बच्चे आगे खेल सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो देंगे। आगे की सारी कोऑर्डिनेशन भी जब तक ये पूरे 6 महीने मैच चलेंगे ये करेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए वो कैप्टन्स जो लोग इन मैचेस के अंदर खेलेंगे, उनके प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो बाहर निकाल लिया जाएगा। हर स्टेट में मिनिमम 500 टीमें रहेंगी। जैसे अभी तक हमारे पास तकरीबन 275 टीमें हो चुकी है रजिस्टर। उन 500 टीमों के 10 मैच अगर मैं लगाता हूँ तो 5000 मैच होंगे। अब जो मैचों का फॉर्मेट रखा है कि 5000 मैच कैसे होंगे, तो डेली खेलेंगे बच्चे, तो 4 बजे से 8 बजे डेली 2 से 3 मैच होंगे और उसके साथ में सैटरडे संडे को 10-10 मैच होंगे। तो पहली बार ऐसा होगा कि एक लीग के अंदर एक हफ्ते में एक वेन्यू में 30 से 40 मैचेस होने जा रहे हैं। अब कितने बच्चे जुड़ेंगे, तो अगर 500 टीमें और 11 बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो 5500 बच्चे पर स्टेट से हमारे पास आएंगे। तो 9 स्टेट और उसके साथ में हमारे पास 5500 बच्चे पर स्टेट। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो करीबन 45 से 50,000 तो बच्चों में मौका मिल जाएगा खेलने का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं। उसके बाद जो टीमें आती रहेंगी वो फिर अपनी स्टेट के बाद जो बाकी 9 स्टेटों में मैच हो रहा है उनके साथ खेलेंगे। तो हर जगह पे ये सिस्टम चल जाएगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 हफ्ते पहले ये लॉन्च करा और उसको लॉन्च करने के बाद अब यहाँ पे आज महाराष्ट्र का लॉन्च कर रहे हैं। साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसकी gmcricketleague.com, वो लाइव है पोर्टल, कोई भी बच्चा जाके वहां पे आज रजिस्टर कर सकता है। फिर हम इसके अंदर यूनिक चीज लेके आए कि बच्चे जहाँ पे खेलेंगे तो बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी पिन कोड से। तो जैसे जो भी हमने जोन बताए हैं तो बच्चा जाएगा वहां डालेगा महाराष्ट्र, जोन सेलेक्ट करेगा जैसे थाने, और फिर उसके अंदर डालेगा अपना पिन कोड। तो पिन कोड बाय पिन कोड टीमों की रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। तो पहले वो अपने जोन में भी खेलेंगे और फिर जो बाकी के जोन है उसमें भी खेलेंगे। तो उस बच्चे को एक झटके में पूरे जो ये 4 जोन फेज 1 में बनाए गए हैं उसको मौका मिल जाएगा। अब जहां ये 500 टीम और 100 मैचेस यानी 5000 टीम, तो 45,000 मैच अगले 6 महीने के अंदर ये 9 स्टेटों में ऑन ग्राउंड होने जा रहे हैं। 55,000 बच्चे डायरेक्टली इन लीगों में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और अगर हर बच्चे का एक 4 भी बच्चे परिवार वाले साथ में जुड़े हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख डायरेक्ट फैमिलीज इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो इस मुहिम के साथ ये पूरे क्रिकेट लीग का बेस बनाया गया हम लोगों ने। तो इसके साथ में अब क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो सारे के पीछे यहाँ पे आईपीएल को सब जानते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन भी जानते हैं कि आज आईपीएल कहाँ खड़ा है।
तो अगर मैं उसके हिसाब से आपको इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से समझाऊं कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, तो पर स्टेट 500 टीम एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100 मैच, मतलब मल्टीप्लाइड बाय हर टीम के 10 मैच, तो मिनिमम आपके हो गए 5000 मैच पर स्टेट। 5000 मैच पर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 9 स्टेट, 45,000 मैच। अब जब 45,000 मैच हो रहे होंगे तो उसके साथ में वहां पर एक टीम से रजिस्ट्रेशन आ रही होगी, एक उसके साथ में मर्चेंडाइज होगा, जो हम मर्चेंडाइज अपना निकालेंगे उसको सेल करेंगे, वो जो सेल करेंगे उसकी इनकम प्लस हमारी सामाजिक संस्था है तो उसके अंदर जो एंडोर्समेंट और डोनेशन आएगी वो। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल 10 लाख रुपए पर मैच का इनकम रेवेन्यू लगाता हूं तो आज की डेट पे फ्लोर में जाने से पहले 4,500 करोड़ रुपए की हमारा जो साथ दिया है इसको खड़ा करने के लिए वो इट्स कमेंडेबल। व्हाट वी वुड हैव अचीव्ड, वी हैड अ टाइमलाइन ऑफ 6 to 9 months, विद देयर हेल्प वी हैव बीन एबल टू डू इट सुपर फास्ट। मैं कैपिटल ग्लोबल मिडास कैपिटल फंड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स से गली मोहल्ला क्रिकेट लीग में लगाई। Every time I'm asked the same question. सब मुझसे ये पूछते हैं कि why are investors putting their money in a cricket league? इससे उनको क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ जो हमारी टीम ने जिसके ऊपर बहुत काम किया है, that is we are working towards impact, social ROI. And how will we measure social ROI? गली मोहल्ला क्रिकेट लीग जैसे हमारा टैगलाइन है, फ्रॉम गलीज टू ग्लोरी। जैसे हमीद जी ने, रमन जी ने, मेरे से पहले वक्ता थे जो जिन्होंने आपको बताया कि कुछ लोग वंचित रह जाते हैं सुविधाओं से, उन्हें जल्दी से उनका हुनर को पहचाना नहीं जाता, उनको एक्सेस नहीं मिलता टू जॉइन अ बेटर लीग, टू राइज इन लाइफ। दोज गाइज नीड अ रिलीज। सेकेंड थिंग, जहाँ पर बाबा जी ने, इंद्रप्रीत सिंह जी ने हमें जो मोटिवेशन दी है, इस फंड ने बाबा जी के साथ पिछले कुछ सालों से इनके प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाया है, काम किया है। उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको समरी दे दूं। पंजाब के बॉर्डर एरियाज में सबसे ज़्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है और जिन फैमिलीज में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है। दे आर अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट, दे आर फिक्स्ड इन अ टाइम बॉम्ब। उस पर्टिकुलर एरिया में उन इफेक्टेड फैमिलीज की महिलाओं को स्काउट करके बाबा जी के हेल्प से फुलकारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 3 साल पहले। हर एक महिला को सिलाई मशीन, फुलकारी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है पंजाब का जिसमें शॉल, स्टोल्स और स्वेटर्स बुने जाते हैं, और उनसे हमने वो बनवाया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको कोच प्रोवाइड किया गया और उसके बाद उसका बाई बैक किया। वी परचेज बैक दी स्टफ दैट दे मेड एंड इट वाज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरी वन ऑफ देम इज टेक इंटीग्रेटेड। दैट मीन्स हमने इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगाई, एक वेरी सिंपल फॉर्मेट, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर एक QR कोड है, जैसे कि आप सब आजकल जानते हैं, इट्स वेरी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। सो एनी पर्सन इन कैनेडा जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, QR कोड स्कैन करता है, ही इज एबल टू फाइंड exactly which women from which district, from which village worked on that particular stall, and we have made a device, a foundation that every person gets a due. They also get revenue. So family strong होती है. Once the women of the head of the become stronger, the family also rises. If the family is strong, the society gets strong. This same model has been now collaborated with the Satkarmic Mission and Ramanji's Gali Mohalla Cricket League, and the same model is now brought into the cricket league. So we are now making it a social impact project. Youth which does not have any direction, easily अपने रोल मॉडल आज तक वो सेलिब्रिटीज को मानते हैं, ड्रग्स के प्रति ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, they are getting addicted to drugs of any form, as Arvind ji said. It can be alcohol, it can be drugs, it can be anything. So they are directionless and they don't have any vision in life. What should they do in life? How can they make their careers and lives and societies and their families better? So this cricket league is going to work on many fronts. One of them is social impact. Those youth will now be channelized, motivated कि उस
गंदे नाले से निकल के आप स्पोर्ट्स की तरफ चलें। जब स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे, कोचिंग मिलेगी, मेंटल रेजिलियंस, मेंटल बैंडविड्थ, मेंटली दे विल बी स्ट्रांग। They will not think only negative, they will start thinking positively. Because they have to play a sport, they will take care of their health and fitness. So once you have a mentally driven and fit youth body and you give them the proper training and they get a platform, सबसे बड़ी बात हम एक platform दे रहे हैं। जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बोला कि कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई हम we are not going to be dependent on props. So the cricket bats and all, as the Gully Mohalla League will give, they are able to play in the same format as they play in the streets. They will get an impetus, a motivation कि हम एक स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें। क्रिकेट से क्रिकेट के पहले ज़्यादा रुझान होगा। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इसीलिए आई है कि इन्वेस्टर्स को अब सोशल इम्पैक्ट और ROI इस तरह से समझाएगी। अब आप पूछेंगे इसको मेजर कैसे करें? सब हमें ये पूछते हैं कि आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करी है, if investors have come ready, okay, they want to see impact, how will you measure impact? We will work in close association with our Maharashtra team, with government agencies, with NGOs, so we will know कि एक particular area में कितने लोग ड्रग से addicted हैं। अगर उसमें से 1%, 2%, 3% I am able to show on record that they have joined cricket and they made a life easier, it's one of the markers. Equity, diversity, we are the first ones, I believe, in Maharashtra Cricket League to also have a women's team. So diversity, inclusion, the same entire format, it's a structured format. Everyone will be given training, resources to actually rise in life. So if you have something to look forward to for a better tomorrow, you are much more motivated. कि अगर मुझे बाइट्स देने का मौका मिले, मेरे को प्रोत्साहन मिले, मेरे बारे में लोग सुने, मुझे बोलने का इजाज़त, मुझे हर जगह बुलाया जाए, this is how you shape young minds. The next generation is actually, this is what we feel directionless. हम AI में काम करते हैं तो इसमें doomsday conspiracy theory बताई जाती है कि AI, AGI इतना एडवांस हो रहा है आजकल। ChatGPT को हमने 2 साल पहले देखा था। अब अगर इतनी एडवांस होगी तो जॉब्स चली जाएंगी। तो अगर जॉब चली जाएंगी तो लोगों को अगर इसके बारे में पता चला तो इसे डीमोटिवेटिंग फैक्टर। हम ये समझते हैं कि हर चीज AI से इफेक्टेड होगी। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो इससे इफेक्ट नहीं होगी, उसका इमोशनल कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ मेकिंग अ फेयर सोसाइटी एंड अ बेटर सोसाइटी। जैसे कि हरमीत जी ने आपसे बताया, महाराष्ट्र पुलिस ने इस प्रोजेक्ट में और क्रेडेंशियल्स देखने के बाद, और आई थिंक 2-3 बार मीटिंग्स बाबा जी से रूबरू हुए, वो इनसे वो समझा, इनका पूरा पास्ट रिकॉर्ड क्रॉस चेक किया, दे वर एबल टू गेट कन्विंस्ड एंड दे हैव जॉइंड हैंड्स विद अस। इससे बड़ा हमारा लिए प्रोत्साहन, मोटिवेशन और क्या हो सकता है कि जैसे मेरे टीम यहाँ पे रिजवान भाई, इम्तियाज भाई मेरे साथ बैठे हैं, शशांक जी, सूरज जी, एंड महाराष्ट्र की जो सारी टीम मेरे साथ आई है, कुछ कैप्टन्स भी यहाँ हैं, और महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने हमारे साथ हमारा हाथ पकड़ा है। और जैसे कि उन्होंने कहा, खार जिमखाना में इसी 20 से पहले एक इनॉग्रल मैच भी होगा। ये हमारे लिए बहुत, हमारे लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए एक बहुत सराहनीय चीज़ है। इट्स वेरी कमेंडेबल। सो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ आई रिक्वेस्ट काइंडली टू बाबा जी, बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी, सरकार मिशन से जी। 15 ते 40 वयोगटातली मुलं असतील आणि सगळे पिनकोड वाईज खेळतील। त्यांचा कॅप्टन एकच आहे, तो रजिस्टर्ड करेल टीम प्लेयर, आणि त्यांना कुठल्याही किटची आवश्यकता नसेल। त्यांचं काम आहे फक्त येऊन खेळायचं। 1 टाइम 1100 रुपयाची त्यांची मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन असेल आणि त्यांना 10 मॅचेस कंपल्सरी खेळायचे। 10 मॅचेस नंतर नॉकआउट मॅचेस चालू होतील, मग इंटर झोन मॅचेस चालू होतील। 1100 रुपये में 10 मैच। सर 1100 रुपये मतलब 11 टीम एक ही बार 1100 100 रुपए पर हेड, 100 रुपए पर हेड, 10 रुपए पर मैच। यानी एक 1100 रुपए में वो टीम 10 बार मैच खेलेगी। यानी अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है तो 10 बार देखने को मिलेगा, उसको 10 बार चांस मिलेगा। गेट चांस टू प्ले। प्राइस 11 लाख है, तो 11 से 2 11 लाख लोग। और आई कन्सेप्ट काय असतं की थोडासा मॅचेस टर्फवर होणार आहे। काही मुलांना बूट घालून खेळायची हे असतं, आवड असते, आणि काही गल्लीत बोलायची असतात। त्यांना जसं नॅचरल असतात, जसे ते गल्लीत खेळतात तसं खेळतात। तर त्याच्यामुळे नवीन एकदम येऊन टर्फमध्ये खेळणं त्यांना शक्य नसतं, किंवा त्यांना तेवढी कॅपॅसिटी नसते की आम्ही टर्फमध्ये खेळू। तर ते आता जेव्हा टर्फमध्ये येतील
तेव्हा त्यांच्यासाठी ते नवीन असेल, वातावरण नवीन असेल, तर त्यांना ते 1-2 मॅचेस खेळायला थोडासा प्रॉब्लेम होईल आणि नंतर मग त्यांचा टॅलेंट ऑटोमॅटिक बाहेर येईल आणि तो टॅलेंट हँड गली मोहल्ला क्रिकेट क्लब को। सर अगर बाई चांस गाजर पर ना हो तो आप किस तरह क्या करते तो मेघालय हो गए, मणिपुर हो गए, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग, बच्चे लोग टैलेंटेड है, उनका टैलेंट बाहर नहीं आ पाता था। अब ये एक जो प्लेटफॉर्म है, जब हमारी भी मीटिंग हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज मैं खुद ड्रग्स को रिलेटेड काफ़ी हम लोग सोशल वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे लोग भटके हुए हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता है बोलते हैं ना एम्प्टी माइंड से डेवल माइंड, तो वो फिर ये सब जो होते हैं ना बुरी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो जब उनके पास में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको कोई 10 रुपया इज नथिंग, एक बहुत छोटा अमाउंट है, उसको लेके उसके अंदर एक जो टैलेंट है वो बाहर उसको पब्लिकली और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में सबको पता चलेगा। इसमें मैं लास्ट में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, मुझे था बताना कि जैसे हमने बोला कि 500 टीम और 10 मैच तो 5000 मैच, और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग लेते हैं तो 45,000 मैच, और अगर 10 लाख रुपए का रेवेन्यू बजटते हैं, आपको इसका कितना जवाब देते हो भाई, तो 4,500 करोड़ तो पहले दिन इसकी कमाई है और 45,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। अब सवाल ये आया है कि जो 4,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं वो यूटिलाइज कहाँ होंगे, तो इसमें मैं बताना भूल गया था, वो आपको बताता हूँ कि ये जितने भी जगहों से क्लस्टर एरिया है या ये जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए वहाँ पे नशा मुक्त करवाने के सेंटर खोले जाएंगे, क्योंकि आप सेंटर खोलोगे उसका खर्चा होगा तो पैसे चाहिए, तो जब आए तो वो खोले जाएंगे। दूसरा, उन जगहों पे जैसे हमने पंजाब में फुलकारी चलाया तो सिलाई कढ़ाई सेंटर खोला जाएगा, बच्चे आएंगी सीखेंगी और उसके बाद चली जाएंगी, तो वो वहाँ पे सिलाई कढ़ाई सेंटर करेगा। तो हर एक क्लस्टर्स के अंदर ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के और उस पूरी कम्युनिटी को एक कमाई का जरिया देने के लिए, ताकि वो इस लाइन से बाहर हो जाए। इतने पैसे चाहिए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जब ये लीग चलेगी और इससे जो कमाई आएगी वो इस तरीके की हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती रहेगी, तो वो कम्युनिटी भी बढ़ेगी, उसमें इनकम भी आएगी और साथ में उनके बच्चे क्रिकेट भी खेलेंगे, तो हर एक जगह से सबका बेनिफिट हो जाएगा। इस तरीके से ये बनाया गया।